تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی اس طرف آنے کی؟ میں نے کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ میں وہ اصل میں بکری کی طرح میں کرنا بند کرو اور مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ ایک جگہ پر آرام کیوں نہیں ملتا تمہیں؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ مجھے اس طرح کی حرکتیں بالکل نہیں پسند۔ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، یہ کہہ کر اس نے اپنی پلکیں جھکا دی۔ چہرے پر معصومیت تھی۔ اس کی یہ ادا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرم پڑ گیا۔ ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اپنے آنسو پیتی وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی بستر پر جا کر بیٹھی تو آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے اپنے دل میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ جس شخص سے اس نے محبت کر کے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، یہ وہ شخص تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ عباد، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں نے کیا کیا ہے جس کی سزا تم مجھے اتنی بھیانک صورت میں دے رہے ہو؟ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی۔ اگر تم مجھے پہلے ہی تمہارے بارے میں پتہ چل جاتا تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں کبھی بھی تم جیسے انسان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ لیکن اس وقت تو نہ میں تمہارے بارے میں جانتی تھی اور نہ ہی میرا اپنے دل پر اختیار تھا۔ اختیار تو اب بھی نہیں ہے، اب بھی یہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی بے چین ہوتا ہے، تمہارے ہی نام پر دھڑکتا ہے اور تمہاری ایک نظر کرم کا منتظر رہتا ہے۔ لڑکی، جلدی سے باہر نکلو، حویلی والے تمہیں بلا رہے ہیں۔ شازمہ کی بات سن کر اس نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آتی ہوں، تم چلو۔ ہاں تو محترمہ، ہم تمہیں یہاں پر اس لیے تو نہیں لائے کہ تمہیں مہارانی بنا کر رکھیں۔ پہلے ہی دن تمہیں تمہاری اوقات بتا دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی اس طرح کی حرکت کرنے پر تم کیا جواز پیش کرو گی؟ 3 مہینوں میں پہلی بار ہی اس نے دن کا کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بار بار دل خراب ہو رہا تھا، اس لیے پہلے وہ کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب دل زیادہ گھبرانے لگا تو پچھلے حصے میں چلی گئی اور چہل قدمی کرنے لگی۔ یہاں پر عموماً حویلی کی عورتوں کا جانا منع تھا، کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر بڑی بیٹھک بنی ہوئی تھی جہاں پر تمام مرد حضرات بیٹھتے تھے۔ اس وقت تو اس نے بھی یہ بات نظر انداز کر دی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر عباد بھی موجود ہوگا، جسے دیکھے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک دم سے جب اس نے اپنے سامنے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ دل خوشی سے بھر گیا۔ سامنے کھڑے شخص کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن اسے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ وہ ان لوگوں کی طرح ہرگز نہیں تھا جو کہ جذبات کی رو میں بہک جاتے تھے اور کچھ بھی کہہ جاتے تھے۔ آپ اتنے دن کہاں تھے؟ بے ساختہ اس نے پوچھا۔ دوسری طرف سے اس نے یہ بات مکمل طور پر نظر انداز کیا اور سرد لہجے میں پوچھنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کے بعد تقریباً 15 منٹ تک وہ اس کی کلاس لیتا رہا۔ وہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، صبح سے دل خراب ہو رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں پا رہا، مگر یہ ساری باتیں وہ اپنے اندر ہی دبا گئی۔ اسے اپنی حویلی والے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اپنے بھائی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس کی ذرا سی طبیعت خراب ہوتی تھی تو پوری حویلی میں کیسے ہلچل مچ جاتی تھی۔ اس کا بھائی پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو، اور پھر اس وقت تک وہ اس کے سرہانے سے نہیں اٹھتا تھا جب تک کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جاتی۔ آج نہ تو اس کے پاس اس کا بھائی تھا اور نہ ہی حویلی کا کوئی اور فرد موجود تھا۔ یہ سب کچھ بھی تو اس کی اپنی نادانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس محبت کو پانے کے لیے اس نے اپنوں کی خالص محبت کو کھو دیا تھا، اور اب یہ محبت بھی
उस पर नजरे करम नहीं कर रही थी। सास की बात सुनकर उसने उनसे भी माजरत कर ली। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। शुरू शुरू में जब वो यहाँ पर आई थी तो छोटी छोटी बात पर बहस करती थी, मगर फिर उसके जवाब में उसे ना सिर्फ मार पड़ती थी बल्कि डांट भी सुनने को मिलती थी। उसकी माँ की तरबियत पर उंगलियां उठाई जाती थी और ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे इस चीज का एहसास तो हो ही गया था कि यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी उसका अपना नहीं है। और अब तो शौहर के बदलते हुए रवैये को देखकर वो मुकम्मल तौर पर टूट कर रह गई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उन लोगों का मुकाबला कर सकती, क्योंकि जिसके सहारे वो मुकाबला करने का सोच रही थी उसी ने ही इसे बेसहारा कर दिया था। आज से तकरीबन 3 साल पहले तक वो बहुत ही सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। हवेली वालों की लाडली बेटी थी और गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मशहूर थी। जो भी उसे एक नजर देखता था उसका दीवाना हो जाता था। 4 भाइयों की एक अकेली बहन, हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। हवेली में सिर्फ और सिर्फ उसी का हुक्म चलता था। उसके बाद उस पर सब फख्र करते थे, जबकि उसके भाई उसकी पाक दामनी की वजह से गरूर से सर उठाकर चलते थे। वो सब लोगों का मान थी। वो थी भी बहुत मासूम, लेकिन हद से ज्यादा लाडली और लापरवाह। नौशीन बेगम अपनी बेटी की इसी लापरवाही की वजह से बहुत ज्यादा खौफजदा रहती थी। वो जानती थी कि जमाना बहुत तेज है और इस जमाने में भी बहुत से ऐसे भेड़िए बैठे हुए हैं जिन्होंने भेड़ की खाल ओढ़ रखी है और वो सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में है कि एक मौका मिले और वो मासूमों का शिकार कर दें। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उन भेड़ियों का शिकार हो जाए। वो वक्तन फवक्तन उसे नसीहत करती रहती थी और हिदायत भी जारी करती थी, मगर वो भी अपने नाम की एक थी। जो बात मानने का दिल करता उस पर फौरन अमल कर लेती और जो बात दिल को अच्छी ना लगती 1000 बहाने निकालती। वो भी मामूल की तरह का ही एक दिन था। हवेली के पिछले हिस्से में वो मौजूद थी। दिमाग में फिर से शैतानी ख्यालात चल रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस हवेली से बाहर निकल जाए और किसी ऐसी जगह पर चली जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुकून मौजूद हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस घर में दावतें चल रही थी और उसे इन लोगों में बहुत उलझन महसूस होती थी और उसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब उसने रानी से इस बारे में बात की तो वो हाथ जोड़कर कहने लगी, बस बीबी साहिबा, मुझे तो इन सब से दूर रखें। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से आपके हिस्से की भी डांट सुन सकूं। उस बार तो बेगम साहिबा ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैंने आपका किसी भी मामले में साथ दिया तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पेट पालना मेरी मजबूरी है, लिहाजा मुझे तो आप इस बार माफ कर दें और मैं आपसे माजरत करती हूँ कि इस बार मैं आपके साथ वफादारी का सबूत नहीं दे पाऊंगी। रानी, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं जाती और ना ही मुझे कहीं जाने का कोई शौक है। तुम ही मेरे साथ चलोगी और ये बात तय है। मैं तुमसे वादा करती हूँ इस बार तुम पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं आएगा। हमेशा की तरह उसने उस बेचारी की बातों को नजरअंदाज किया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चली गई। उसे पता चला था कि गांव से थोड़े ही फासले पर एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका शुरू होता है। उसने पहले वो वहां पर कभी भी नहीं गई थी, क्योंकि बहुत सी खबरें भी मशहूर थीं कि वहां पर करीबी गांव के सरदार मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियां करते हैं। इसीलिए उसे ज्यादा तजस्सुस हो गया था। रानी को फिलहाल पता नहीं था कि वो लोग कहां पर जा रहे हैं। उन लोगों को चलते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। आखिर वो तंग होते हुए बोली, बीबी साहिबा, क्या आपका चांद पर जाने का इरादा तो नहीं? वो जगह आने का नाम क्यों नहीं ले रही? एक तो तुम बेसब्री बहुत ज्यादा हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रही हूं। क्या मैंने एक बार भी शिकायत की?
हालांकि मैं तो तुमसे ज्यादा लाडली और नाजुक हूं। बीबी साहिबा, यहाँ पर सवाल आपके शौक का है, और जहां पर आपको अपना कोई मकसद पूरा करना हो वहां पर आप रास्ते में आने वाली रुकावटों को नहीं देखती। उसने मुंह बनाते हुए कहा था। ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर मेरी बुराई कर रही हो? अरे मैं कैसे आपकी बुराई कर सकती हूं? मैं तो बस आपको आपकी फितरत के बारे में बता रही हूं। दोनों बातें करते करते उस जगह पहुंच चुके थे। जब रानी वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकी और उसने आसपास का जायजा लिया तो एक लम्हे के लिए उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। खौफजदा होकर उसने बीबी साहिबा का हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, ये आप क्या कर रही हैं? आप पागल तो नहीं हो गई? आप जानती भी हैं कि आप मुझे लेकर कहां पर चली आई हैं? वाह रानी, जिस तरह का तुम रिएक्शन दे रही हो, साफ जाहिर हो रहा है कि तुम पहले भी यहां पर आ चुकी हो। उसने बीबी साहिबा की बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और दोबारा से खौफजदा होते बोली, अगर साहब को इस बारे में पता चल गया तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे, या फिर अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम किन लोगों की बात कर रही हो? मुझे जल्दी से बताओ। मुझे मेरी दोस्त ने भी बताया था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। अब की बार राबिया तेजी से बोली, हालांकि वो किसी हद तक इस बारे में जानती थी। आपको पता नहीं है कि ये जमीन सरदार इबाद की है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे गांव में मौजूद है और वो कैसे इस पर काबिज हो सकता है? इस गांव में जितनी भी जमीनें हैं वो सारी मेरे दादा जान के नाम पर हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने कुछ जमीनें गांव वालों को बांट दी थी ताकि वो उस पर अपने घर बना सके या फिर खेती बाड़ी कर सके। बात करते करते उसकी गर्दन फखर से तन गई। इबाद, जो कि थोड़ी देर पहले ही वहां पर अपने आदमियों के साथ आया था, जब उसने एक लड़के की आवाज सुनी तो चौंक गया। आज से पहले यहाँ पर कोई भी औरत नहीं आई थी और ना ही किसी को आने की इजाजत थी। आज ही उसने अपने आदमियों को वहां पर पहरे के लिए नहीं बिठाया था। इसी वजह से ही शायद कोई यहाँ पर चला आया था। उसे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर किस लड़की ने इतनी हिम्मत की कि वो उसकी इजाजत के बगैर उसके हिस्से में दाखिल हो जाए। जब वहां पर जाकर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी थी जो यकीनन अपनी दोस्त के साथ लड़ रही थी। लेकिन सद अफसोस कि आपके दादा जान हमसे ये जमीन नहीं ले सके और ना ही हमने कभी उनको दी। मर्दाना आवाज पर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। पलटकर देखा तो काले लिबास में मौजूद इबाद चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ा था और बहुत ही गौर से राबिया के चेहरे को देख रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, क्या तुम सरदार जुनैद की बेटी हो? उस पर वो जोरों शोर से नफी में सर हिलाने लगी। रानी ने एक नजर हैरानगी से अपनी बेगम साहिबा की तरफ देखा, जो कि थोड़ी देर पहले तक तो अपने खानदान के नाम की वजह से बड़ी अकड़ रही थी, लेकिन अब फौरन से निकल गई थी। उसकी बात सुनकर इबाद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसका लहजा भी तब्दील हो गया था। अब की बार वो थोड़े से सख्त अंदाज में पूछने लगा, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और थोड़ी देर पहले वो बात क्यों कर रही थी? वो तो बस मैं यूं ही अपनी दोस्त के साथ मजाक कर रही थी। दरअसल मैं इसी गांव में रहती हूँ और एक हकीम की बेटी हूँ। मेरे बाबा जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक बूटी ढूंढने आई थी, लेकिन लगता है कि मैं गलत हिस्से में चली आई हूँ। उसने एक नजर उसके पीछे खड़े आदमियों पर डाली जिन्होंने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें उठा रखी थी। दरअसल वो इस जगह पर अपनी फायरिंग की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आता था। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर तुम सरदार जुनैद की बेटी होती तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता। ये कहकर उसने बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि उस लड़की ने किस हद तक सच बोला है और कितनी हद तक झूठ बोल रही है।
मगर वो भी अपने नाम की पक्की थी। झूठ बोलने में तो वो वैसे ही शुरू से ही माहिर थी। अपनी माँ की आंखों में देखकर बहुत ही आराम से झूठ बोल देती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था। और फिर अपनी इसी महारत का उसने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया। आप क्या सलूक करते? अब की बार उसने मासूमियत से पूछा और आंखें टिमटिमाकर उसकी तरफ देखने लगी। और यहीं पर इबाद का दिल धड़कना रुक गया। आज से पहले उसने कभी भी इतनी मासूम लड़की नहीं देखी थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, उसे अपने एक आदमी की आवाज सुनाई दी। जनाब, सरदार सिकंदर आपसे मिलने के लिए आए हैं। अपने भाई का नाम सुनकर एक दम के लिए तो उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। बेसाख्ता पास खड़ी रानी की तरफ देखा जो खुद भी कांप रही थी। अगर वो इस वक्त सिकंदर को यहाँ पर मिलने के लिए बुला लेता तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। और जिस अंदाज में वो उसके खानदान वालों का नाम ले रहा था, उससे भी वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वो उन सब लोगों से कितनी नफरत करता है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी, उसके बारे में तो उसे अपने घर वालों से ही मालूम हो सकता था। मैं फिलहाल किसी से नहीं मिलना चाहता। इस वक्त मैं मसरूफ हूं, लिहाजा उसको बताओ कि वो किसी और दिन आ जाए। ये कहकर वो दोबारा से इस छोटी सी लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? वो यूं मुतमईन अंदाज में खड़ा था जैसे उसने दुनिया के सारे काम निपटा लिए हों और अभी उसके पास करने के लिए कुछ भी मौजूद ना हो। वो दरअसल मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर वापस जाना है। जब वो मिनमिनाते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम यहाँ पर आई हो। अभी तो तुमने मुझे अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं। अपना नाम तो मुझे बताती चलो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या नाम बताए। उसके जहन में उस वक्त चांदनी आया तो उसने अपना फर्जी नाम बता दिया और फिर रानी का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से भाग गई। जब हवेली पहुंची तो उसका पूरा वजूद खौफ की वजह से पसीने में शराबोर था और सांसें भी तेज थीं। रानी ने दोबारा से उसके सामने हाथ जोड़े और अब की बार तकरीबन चीखते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अब मैं दोबारा आपके किसी भी कारनामे में आपका साथ नहीं दूंगी। अगर इस बार आपने मुझ पर किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि आपकी वालदा को इस बारे में बता दूंगी। आप अब हद से गुजरती चली जा रही हैं। आप बेशक मेरी मालकिन हैं, लेकिन उम्र में मैं आपसे बड़ी हूं और तजर्बा भी आपसे कई गुना ज्यादा है। जो कुछ आप कर रही हैं उससे सिर्फ और सिर्फ खुद को मुश्किल में डालेंगी। आपके हाथ में सिवाय रेत के और कुछ नहीं बचेगा। मेहरबानी करें, खुद पर रहम करें और अपने घर वालों की इज्जत का भी ख्याल करें। ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी। एक मामूली सी नौकरानी ने राबिया को इतनी बातें सुनाई थी मगर वो कोई जवाब नहीं दे पाई थी। शायद उसके पीछे वजह यही थी कि वो भी जानती थी इस बार उसने जो कुछ भी किया वो कोई छोटी गलती नहीं थी। अगर वो पकड़ी जाती तो वाकई एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाता। उसका वो भाई जो कि उसे अपना मान समझता है वो भी उससे बदजन हो जाता। रात के वक्त सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे जब अचानक ही वो बाबा जान से पूछने लगी, ये इबाद खान कौन है? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें तंग किया? कहीं उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की? या वो तुमसे किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश कर रहा है? सिकंदर ने एक ही सांस में उससे ढेर सारे सवालात पूछ डाले थे और फिर उसके साथ ही उसे मामले की संगीनी का भी अंदाजा हो गया। वो नफी में सर हिलाते बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि वो उस गांव का सबसे अमीर इंसान है और बहुत ही असर और रसूख वाला बंदा है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमारे होते हुए कौन हमारा मुकाबला करने पर आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो हमारे गांव का है वो और ना ही वो कोई अमीर इंसान है। वो एक नंबर का फ्रॉडिया है। बस उसके नाम से भी दूर रहो और दोबारा कभी भी उसके बारे में बात नहीं करना। मुझे उस इंसान से शदीद नफरत है। अगर मेरा बस चले
تو میں اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں، لیکن اس پر میرا بس نہیں چل رہا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب وہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافیاں مانگے گا، لیکن میں تب بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ آخر آپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آخر ایسا ہوا کیا ہے جو آپ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے؟ اس نے دوبارہ تجسس سے پوچھا تو اب کی بار اس کا سب سے چھوٹا بھائی شہریار اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے کہنے لگا، تم کیوں اس کی ذات میں اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ نہیں، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں تم ویسے بھی بات نہ کرو۔ اسے اس حویلی میں کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہے۔ آج تو تم نے یہ قصہ چھیڑ دیا، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس سلسلے پر گفتگو نہ کرنا، ہمیں بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ چیز پسند ہے کہ گھر کی عورتیں پرائے مردوں کے بارے میں باتیں کرتی پھریں۔ اس کا چھوٹا بھائی تھوڑا سا عجیب طبیعت کا مالک تھا اور تھوڑا سا تنگ ذہن بھی تھا۔ وہ اپنے بھائی کی فطرت کو سمجھتی تھی، اسی وجہ سے مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے کسی قسم کی بحث نہیں کی، جانتی تھی کہ کوئی فائدہ نہیں، الٹا لڑائی ہی ہوگی۔ جہاں تک جنید صاحب کا سوال تھا تو وہ ابھی تک انہوں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ بہت ہی غور سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دی کہ ہو سکتا ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو، اس کی دوست نہیں اس سے اس بارے میں کسی قسم کی بات کی ہو۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو دل تھوڑا سا پریشان تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کیا چل رہا ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے اس کے دل پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ دماغ میں بار بار وہ بھورے رنگ کی آنکھیں گھوم رہی تھی جسے اس نے کل دیکھا تھا۔ اس کا دل بار بار اس جانب جانے کے لیے لپک رہا تھا۔ وہ خود اپنی سچویشن نہیں سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ انسان میرے دماغ سے نکل کیوں نہیں رہا؟ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اپنے بال کھینچنا شروع کر دیے۔ آج سے پہلے اس کا سامنا کبھی بھی اس طرح کی صورتحال سے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو اگر پہلے کبھی کسی حصے میں یہ سنتی تھی کہ اس نے صرف اور صرف ایک بار دیکھنے پر وہ کسی کی دیوانی ہو گئی ہے تو وہ اس طرح کی لڑکیوں کا مذاق بناتی تھی، مگر آج وہ خود اس طرح کی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور خود کو مضبوط ظاہر کرتے اپنے آپ سے وعدہ لیا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دوبارہ سے اس انسان کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ لیکن یہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم حویلی کے باہر کی جانب لپک رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ اس حویلی سے جتنے قدم وہ دور جائے گی اتنے قدم وہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں کے قریب ہوتی جائے گی۔ مگر اسے بھی تو صرف اور صرف اپنی تسکین پوری کرنی تھی اور اپنے دل کو سکون پہنچانا تھا۔ جب وہ اسی جگہ پر دوبارہ سے پہنچی تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اپنے نام کی پکار سن کر بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی کھڑا تھا، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے درخت سے ٹیک لگائے۔ میں کل پوری رات سو نہیں پایا، تمہارا یہ چاند جیسا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ چاندنی، اس نے اسے اپنی طرف اپنی آنکھوں میں سموتے کہا تو دوسری طرف رابعہ کے گال لال ہو گئے۔ شرم سے اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، مگر چونکہ وہ لڑکی سادہ تھی اور اس طرح کی بات اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، اسے ہچکچاہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی سے خود پر قابو پا کر مضبوط انداز میں کہنے لگی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ اس پر وہ مسکرا دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد جو میرا مسئلہ ہے وہی آپ کا مسئلہ۔ خیر، آپ کی یہ لال آنکھیں تو مجھے کسی اور چیز کی گواہی دے رہی ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی رات ویسے ہی کاٹی ہے
जैसी रात मैंने काटी है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। बेहतर यही है कि इस गलत फहमी से निकल आए। अच्छा, अगर ये गलत फहमी है तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त अपने घर में मौजूद होना चाहिए था। कल आपने मुझे मेरे आदमियों के साथ देखा था और डर भी गई थी। जितनी स्पीड से आप यहाँ से भागी, मुझे तो लग रहा था कि अब दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएंगी। और आपके उस गांव पर तो उस जालिम जुनैद का ही कब्जा है। वो तो मुझे कभी भी उस जगह पर दाखिल ना होने दे। मैं तो परेशान ही हो गया था कि पता नहीं दोबारा कैसे आपसे मिल पाऊंगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, मेरे दिल को आपके दिल से मिला दिया। और देखें, अब आप मेरे सामने खड़ी हैं। वो बहुत ही संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था, कहीं भी शरारत का कोई अंसर नहीं था। अगर मेरा उन लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक होता तो आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? देखो, मैं फिलहाल उन लोगों के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे उन लोगों के वजूद से शदीद नफरत है। उनको देखकर ही मुझे घिन महसूस होती है। मेरा बस नहीं चलता कि उन सब लोगों को गोलियों से भून डालूं, लेकिन बेबस हूं। वो भी इसी तरह की बातें कर रहा था जिस तरह की बातें उसके भाई ने की थी। और फिर राबिया ने वही सवाल फिर से पूछा, आप उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? फिलहाल इन चीजों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। बहुत जल्द तुम्हें सारी हकीकत के बारे में बता दूंगा। अभी तो हम मिले हैं, पहले एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तुम्हारा नाम तो मैंने पता लगा ही लिया है। उसके अलावा मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ रहती हो, कितने बहन भाई हैं, क्या पसंद है, वगैरह वगैरह। वो जानती भी थी कि वो आग से खेल रही है और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो बुरी तरह से झुलस जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आग को ही तरजीह दी थी। उसके साथ ही थोड़े से फासले पर बने हुए एक छोटे से एरिया में बैठ गई, जहां पर चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। सामने का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। एक छोटी सी नदी थी जो इस गांव में बहती थी। वहां से वो ठीक तरह से नजर आती थी और आसपास पहाड़ और दरख्त मौजूद थे। क्या तुम्हें मेरे साथ डर नहीं लग रहा? बेसाख्ता इबाद ने सवाल पूछा तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। उस पर वो खुलकर मुस्कुराया था। वाह, बहुत ही हैरानगी की बात है। मुझे तो सब लोग खौफजदा होते हैं, मगर एक तुम हो जिसे डर नहीं लग रहा। चलो, मेरे लिए ये नई बात है और मुझे बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे बातें करते रहे। जब अचानक ही वो कहने लगा, मैं एक टिपिकल आशिकों की तरह हरगिज नहीं हूं और ना ही मुझे आशिकी झाड़ने का पता है। मैं बहुत ही मैच्योर इंसान हूं। जो बात करूंगा साफ करूंगा। किसी भी किस्म की कहानियां सुनाना मुझे नहीं आता और ना ही मुझे इन सब का शौक है। मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा, तुम्हारा दीवाना हो गया और मुझे यकीन है कि जो मोहब्बत मुझे तुमसे हुई है, ये मोहब्बत मुझे कभी भी दूसरी औरत से नहीं होगी और ना ही मैं कभी करूंगा। जिंदगी के 28 साल गुजर चुके हैं, मगर आज तक मैं कभी भी किसी की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। कल उन दोनों की मुलाकात हुई थी और आज ही उसने निकाह की पेशकश कर दी थी। ये सब सुनकर वो बुरी तरह बौखला गई। इससे पहले कि वो कोई बहाना करती, वो दो टोक अंदाज में बोला, अगर तो तुम मेरे जज्बात के साथ खेलने का इरादा रखती हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर पहले तुम्हारे दिल में इस तरह का कोई ख्याल भी था तो अब उसे निकाल दो, क्योंकि अब तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। वापसी का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा और ना ही कभी तुम्हें कोई रास्ता दिया जाएगा। बहुत जल्द गांव में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हारे घर में निकाह का पैगाम भिजवा दूंगा। तब तक तुम अपने घर वालों को भी ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना। वो बहाने बनाना चाहती थी, लेकिन वो उसे किसी किस्म का मौका नहीं दे रहा था। ना चाहते हुए भी वो उसकी सारी बातें सुनती चली गई। जब उसके साथ 2 घंटे गुजार कर घर वापस आई तो दिल बहुत भारी हो रहा था। एक तरफ उसके अपने घर वाले थे
اور دوسری طرف وہ اجنبی تھا جسے اس کی زندگی میں آئے تقریباً 1 دن ہی گزرا تھا، اور پھر ایک ہی دن میں وہ اس کے پیچھے اس قدر دیوانی ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ اس دن اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں جائے گی، مگر اس وعدے پر وہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ اگلے دن اس ٹائم وہ دوبارہ سے اسی جگہ پہنچ گئی۔ اب تو اس نے معمول بنا لیا تھا، روز اس کے ساتھ جا کر 2 گھنٹے گزارتی تھی، دل کی باتیں کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ٹائم پاس کے لیے کر رہی ہے، اسے کبھی بھی محبت نہیں ہوگی۔ اس کی یہ غلط فہمی اس دن دور ہوئی جب وہ اس کا وہاں پر انتظار کرتی رہی، لیکن وہ وہاں پر نہیں آیا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی، اس کا دل اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ صرف اور صرف ایک دن دیدار نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت اس قدر بدتر ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اسے دیکھتا تو یقین ہی نہ کر پاتا کہ یہ وہی ہنستی کھیلتی لڑکی ہے۔ وہ تقریباً 3 دنوں تک اس سے ناراض رہی تھی اور اسے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ یہ 3 دن عباد نے بھی بہت مشکل سے گزارے تھے۔ وہ اس کے بارے میں اس کے نام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور اب اسے اسی چیز کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر سارا گاؤں ڈھونڈ ڈالے، اور پھر اس نے اپنے آدمیوں کو بھی وہاں بھیجا، مگر جو خبر اسے سننے کو ملی، ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ رابعہ کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ کسی معمولی حکیم کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسی جنید سردار کی بیٹی تھی جس سے وہ شخص بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ پوری رات اس نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرہ گھومتا رہتا تھا جس نے اسے اتنے عرصے میں دھوکے سے رکھا ہوا تھا، مگر اس نے اس بارے میں رابعہ کو محسوس نہ ہونے دیا۔ اگلے دن بھی وہ اس سے نارمل انداز میں باتیں کرتا رہا اور اس سے اس کے نقلی ماں باپ کے بارے میں سنتا رہا۔ اسے اس وقت اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی مہارت سے جھوٹ بولتی ہے۔ اسے اس طرح کی مکار لڑکیاں پسند نہیں تھی، مگر سامنے اس کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف سکندر کو بھی اس بارے میں خبر ہو چکی تھی۔ اس دن اس نے اپنی بہن کو بہت زیادہ مارا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب وہ اسے اپنا مان کہتا تھا، اور اب وہ اسے شدید نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ خبردار جو اگر تم نے دوبارہ اس ذلیل انسان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ نوشین بیگم زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی اور اسے روکنا چاہ رہی تھی، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جنید صاحب تھوڑا سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ تھک کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، خاموشی سے اس کا اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے اپنے دشمن کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر سکتا ہوں؟ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس سے بے وقوفی ہو گئی ہے۔ آج جو سزا ملی ہے مجھے یقین ہے اس کے بعد اسے عقل آ جائے گی، اب دوبارہ کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی، مجھے یقین ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جنید صاحب اپنے بیٹے کو کہنا چاہتے تھے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، وہ تمہاری بہن تھی، تمہاری عزت تھی، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے تھا، مگر یہ ساری باتیں وہ اپنے دل میں ہی دبا کر بیٹے کے غصے بھی خوفزدہ ہوتے تھے۔ جانتے تھے کہ جب سکندر کا دماغ ایک بار گھوم جاتا تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ دوسری طرف عباد نے اس حد تک رابعہ کو اپنے پیار میں پاگل کر دیا کہ اسے ابھی بھی اس کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اس وقت یہ فکر نہیں تھی اور نہ ہی اسے پرواہ تھی کہ اس کا جسم زخموں سے چور ہے۔ اسے صرف اور صرف ایک ہی چیز کی ٹینشن تھی کہ اس کا بھائی اس کا نکاح اپنے کسی دوست کے ساتھ کروا دے گا اور وہ یوں عباد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔
वो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ते कहने लगी, अम्मा सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा कभी भी आपसे किसी भी किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करूंगी। बेटा, मैं तुम्हें अपने ही हाथों से जहन्नुम में नहीं झोंक सकती। तुमने तो उस शख्स के साथ भी झूठ बोला हुआ है। जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो वो क्या तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार होगा? अम्मा, आप इस चीज की फिक्र मत करें, वो मुझे कबूल कर लेगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। वो मेरी कदर करता है, मेरी परवाह करता है, और मोहब्बत तो फिर अपने महबूब की बड़ी बड़ी खताओं को भी माफ कर दिया जाता है। मैंने तो उसे बस छोटी सी बात छुपाई है। बेटा, तुम्हारे लिए एक छोटी बात होगी, लेकिन ये एक बहुत मायूब हरकत थी जो तुमने की है। तुमने ना सिर्फ उस इंसान को धोखा दिया है, बल्कि उसके साथ साथ तुमने हमें भी हमारी ही नजरों में गिरा दिया है। तुमने हमें इस चीज का एहसास दिलाया है कि हमें तुम्हें हद से ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए थी, और लड़कियों को उनकी औकात में ही रखा जाए तो बेहतर होता है। प्लीज अम्मी, इस तरह की बातें ना करें। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है, और मोहब्बत इंसान सोच समझकर थोड़ा करता है, ये तो बस हो जाती है। मैंने भी उस इंसान को देखा और पहली ही नजर में उसकी दीवानी हो गई। तब तक तो मैं ये नहीं जानती थी कि वो हमारा दुश्मन है। उन लोगों के साथ हमारी दुश्मनी बहुत पुरानी है। उसके दादा जान की भी तुम्हारे दादा के साथ जमीनों के सिलसिले में लड़ाई हुई थी, और फिर बाद में सिकंदर की भी उसके साथ लड़ाई हो गई। उसने ही सिकंदर को कंधे पर गोली मारी थी। अब की बार यकदम वो खामोश हो गई, मगर उसका दिल अभी भी रो रहा था। अम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस इंसान को माफ कर दें, या भाई उसको माफ करके मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दें? तुम पागल हो गई हो, तुम वाकई पागल हो गई हो, और अब मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुमने कुछ समझना ही नहीं। ये कहकर वो गुस्से से वहां से उठकर चली गई। उन्हें लग रहा था कि सुबह तक वो रोती रहेगी तो खुद ही सब्र आ जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो तो कुछ और ही सोच कर बैठी हुई है। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था। रानी अपने कमरे में सो रही थी जब उसे यूं महसूस हुआ किसी ने दस्तक दी है। जरा सी आंखें खोलकर देखा तो दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। वो जल्दी से उठ बैठी। खोला तो सामने ही छोटी बीबी हाथ जोड़कर खड़ी थी, और आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। बाल बिखरे हुए थे, जबकि होंठ कपकपा रहे थे। आखिरी बार मेरी मदद कर दो। वादा करती हूँ दोबारा कभी भी तुम्हारे पास फरियाद लेकर नहीं आऊंगी, और ना ही कभी तुम्हें तंग करूंगी। सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार मुझे इस अजियत से निकाल दो। मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम नहीं जानती कि मैं इस वक्त कितनी तकलीफ में हूं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको एक बात बता देती हूं कि आप अपने साथ जुल्म कर रही हैं। मैं सब बहुत अच्छे से जानती हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे लगता है मेरा दिमाग दर्द से फट जाएगा। मुझे किसी तरह से अपनी ये ज़हनी अजियत कम करनी है, और ये अजियत सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ही कम कर सकता है। उस रात वो रानी की मदद से वहां से निकल गई थी। उसे यकीन था कि इबाद इस वक्त भी अपनी जगह पर ही बैठा होगा, क्योंकि जब भी वो परेशान होता था वहां जाकर बैठ जाता था, और फिर काफी देर तक सिगरेट पीता रहता था। अभी भी वो बैठा इसी लड़की के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में उसे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि सिकंदर कल ही उसका निकाह करने का इरादा कर रहा है। वो यही मंसूबा बना रहा था कि नजर राबिया पर पड़ी, जो कि गिरती पड़ती वहां पर आ रही थी। एक लम्हे के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। ना चाहते हुए भी वो तेजी से उस बेवफा की तरफ लपका और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। दिल को यकदम ही सुकून का एहसास पहुंचा, लेकिन जब उसे याद आया कि उस लड़की ने इसे धोखा दिया था तो जल्दी से पीछे की तरफ हटा। मजबूत लहजे में कहने लगा, अभी
हम दोनों एक दूसरे से निकाह कर रहे हैं। वो भी जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। उसे लग रहा था कि बहुत जल्द अपने शौहर के साथ मिलकर वो सब कुछ ठीक कर देगी, अपने भाइयों को भी मना लेगी और ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मगर वो नहीं जानती थी, पहले उसने इबाद को धोखा दिया था और अब बारी इबाद की थी। निकाह के फौरन बाद वो उसे लेकर अपनी हवेली चला गया और जाकर सब लोगों के सामने यह ऐलान किया कि आज के बाद इसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी के अलावा और कुछ भी नहीं। आप लोग इसे जो मर्जी काम करवा लें। अगर ये आप में से किसी भी इंसान का हुक्म मानने से इनकार करे तो मुझे बताइएगा, मैं खुद इससे निपट लूंगा। राबिया जो सोच रही थी कि वो सब लोगों से उसका तारुफ करवाएगा, मगर यहाँ पर आकर तो सब कुछ ही बदल गया। उसने पहले ही दिन उसकी औकात याद दिला दी थी और उसकी आंखों में देखकर नफरत आमेज लहजे में कहा था कि मैं उन लोगों को माफ नहीं करता जो लोग मुझे धोखा देते हैं। या तो मैं उन लोगों को जान से मार देता हूँ या फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर पागल कर देता हूँ। और तुम उनमें सबसे ज्यादा बदकिस्मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत देखोगी और तुम्हें पता चलेगा कि किसी को धोखा देने का कितना बुरा अंजाम होता है। इबाद, एक बार मेरी बात सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया हम लोगों के लिए किया। ये बात सच है कि मैंने तुमसे अपने खानदान वालों की सच्चाई छुपाई, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों का ताल्लुक खराब हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। उसके अलावा ना जाने वो क्या क्या कह रही थी, मगर सामने खड़े शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के वक्त उसने उसको अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। सुबह वो गहरी नींद सो रही थी, जबकि वो थोड़े ही फासले पर बैठा उसको देखकर ये सोच रहा था कि काश तुम सिकंदर की बहन ना होती। दूसरी तरफ सिकंदर की बहन घर से चली तो गई थी, मगर उस दिन के बाद वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे अंदाजा हो रहा था कि अपनी बहन के साथ उसे ये जुल्म नहीं करना चाहिए था, और उसे इस बात के बारे में बताया गया था कि बहन भागी नहीं है, बल्कि वो जलील इंसान उसे जबरदस्ती लेकर चला गया। उसने दोबारा उससे मुलाकात करने की कोशिश की, मगर इबाद ने उसकी आंखों में देखकर बड़े मजे से कहा, अब तुम कभी भी अपनी बहन से नहीं मिल पाओगे, बल्कि अब तुम देखोगे कि वो कैसे तड़पती है। वो बहुत बुरी तरह से बेबस हो चुका था। पुलिस की मदद लेने की भी कोशिश की थी, मगर उसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह का रवैया इबाद उसके साथ रख रहा था, उसकी बातों से पुख्ता यकीन हो गया था कि उसकी बहन को फंसाया जा रहा है, और इसी में राबिया का भी फायदा था कि उसके भाई का दिल तो उसकी तरफ से साफ हो गया था। ये सब करने में रानी ने अहम किरदार अदा किया था। उसे इस बात का अंदाजा था कि जब वो इस इंसान के पास जाएगी तो वो इंसान अपनी औकात जरूर दिखाएगा। इसी वजह से उसने रात उसे भगाने के बाद वावेला मचा दिया कि वो इंसान जबरदस्ती उसे यहां से लेकर भगा ले गया है, और उसने खुद ही इसे यहां से जाते देखा है। तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो उसे लेकर निकाह करके हवेली पहुंच चुका था। 3 महीने बहुत ही तकलीफ से गुजरे। एक एक लम्हा उसने मरते हुए गुजारा था, मगर वो लम्हा उसके लिए जिंदगी की नवीद ले आता था जब वो शख्स को देखती थी या फिर उसको महसूस करती थी। इसके अलावा उसे अपनी जिंदगी बेमायनी लगती थी। हर वक्त माँ बाप की याद आती रहती। भाइयों की मोहब्बत उसके दिल को मजीद दुख से भर देती थी। रात के वक्त जब उसकी तबीयत दोबारा से खराब हुई तो वो उसे अस्पताल लेकर गया। दरअसल पिछले 1 महीने से वो भी जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। ये वक्त वही जानता था कि कितनी मुश्किल से काटा था। वो बाहर बैठा इंतजार कर रहा था जब डॉक्टर मुस्कुराते निकली और उसे कहने लगी, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। एक लम्हे के लिए तो उसे अपनी कानों पर यकीन ही नहीं आया। बेयकीनी से दोबारा पूछा तो दूसरी बार भी डॉक्टर ने वही खबर सुनाई।
जैसे ही कमरे में कदम रखा तो राबिया की दुख में डूबी हुई आवाज सुनाई दी, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें बेटी दे। बेसाख्ता नजरें उठाई। अल्लाह ताला तुम्हें बेटी दे और फिर तुम्हारी बेटी के साथ भी वैसा ही सलूक हो जैसा सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि बेटी की तकलीफ कितनी बड़ी होती है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। और फिर यही वो वक्त था जब उसका दिल भी बदल गया था। शिद्दत से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। काफी देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बुत बना एक ही जगह पर खड़ा रहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। राबिया को बाद में हवेली ले जाया गया था, मगर उसके साथ साथ जुल्म सितम में कमी वाक़या नहीं हुई थी। अभी भी उससे घर के ही काम करवाए जाते थे। इस दौरान इबाद फिर से लापता हो गया था। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। अगली बार जब वो वापस आया तो सबसे पहले राबिया को उसका हक दिलाया जो कि हवेली में बनता था, और सब लोगों को साफ साफ कह दिया कि खबरदार जो किसी ने भी उसकी तरफ गलत निगाह उठाई, ये मेरी बीवी है और अब ये इस घर में बीवी की हैसियत से रहेगी। जहां तक सिकंदर का सवाल था तो उसके साथ भी उसने अपने मामलात हल कर लिए थे। रात को जाकर राबिया से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और कदमों में गिरते हुए गिड़गिड़ाया था कि वादा करता हूं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुम प्लीज अपनी बद्दुआ वापस ले लो। राबिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने इबाद के हाथ पकड़े और तकलीफ में डूबे लहजे में कहने लगी, वो बद्दुआ मैंने दिल से नहीं दी थी, बल्कि वो तो मैंने बेसाख्ता कह दिया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। आखिर कोई अपनी औलाद के बारे में भी ऐसा सोच सकता है? आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उस पर आपसे माफी मांगती हूँ, और आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उस पर आपको माफ कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक पुरसकून जिंदगी गुजारें जहां पर एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत दें। अब ये तकलीफें बर्दाश्त करने की मजीद हिम्मत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब दोबारा कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा।